اپنے تمام ناظرین کو اسپین کے سیویے سے خوش آمدید۔ تاریخی اہمیت کے اس شہر کی نواحی علاقوں کو ملا کر آبادی 15 لاکھ بنتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ مسلمانوں نے سن 712 عیسوی میں اسپین پر قبضہ کرنے کے بعد اس شہر کا نام اشبیلیہ رکھ دیا اور یہ شہر قرطبہ کی عظیم سلطنت کے ماتحت آ گیا۔ لیکن پھر مسلمانوں کے مختلف گروپوں نے اس شہر پر خود مختار حکومت کی۔ یہاں یہ بتانا چلوں کہ اگر آپ اس علاقے میں تشریف لائیں تو اس شہر کو سیول نہیں بلکہ سیویے کہیں۔ اسپینش زبان میں ڈبل ایل کو وائی یا اردو ہندی میں یہ پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لے چلتا ہوں یہاں کے محل کی طرف۔ اس کو سیویے القصر کہا جاتا تھا، بعد میں اسپینش زبان میں سیویے الکزار کہا جانے لگا۔ اس کے داخلی دروازے پورتا دے لون یعنی شیروں کا دروازہ کہا جاتا ہے، جس کی وجہ ٹائلوں سے بنا ہوا 19ویں صدی عیسوی کا یہ تاج والا شیر ہے۔ یہاں سے ٹکٹ لے کر قصر کے اندر داخل ہوا جاتا ہے۔ اس حصے کو شیر کا ہال کہا جاتا ہے۔ ہال کے خاتمے پر ایک دیوار ہے جس میں 3 پیٹیوز ہیں۔ اس دیوار کو المہد دیوار کہا جاتا ہے۔ یہ محرابیں مسلمانوں کے دور میں گھوڑوں کی نسل کی طرز پر بنی ہوئی ہوتی تھی، لیکن بعد کے عیسائی بادشاہوں نے ان کو نیم دائرہ شکل کا بنوا دیا۔ یہاں سے آگے چلیں تو مونٹیریا ہال پڑتا ہے۔ اس کے آگے یہ سالے دے جسٹیسیا یعنی انصاف کا ہال ہے۔ اس ہال کو المہد بادشاہ فیصلے صادر کرنے کے لیے استعمال کیا کرتا تھا، لیکن اس کی مزید توسیع ہوتی رہی اور آخر کار اس ہال کو الفانسو بادشاہ نے سن 1350 عیسوی میں مکمل کروایا۔ اس ہال کا فرش چوکور ہے۔ مجموعی طور پر یہ ہال الحمرا محلات کے کومورس ہال سے بے حد مماثلت رکھتا ہے۔ پتھروں سے بنی ہوئی 3 سیڑھیوں کے بعد ایک پتھری تخت ہے جس پر بادشاہ بیٹھ کر فیصلے سنایا کرتے تھے۔ اس ہال کی چھت بے حد خوبصورت ہے۔ اس ہال کے باہر پاتیو دیل یسو یعنی یسو کا باغیچہ ہے۔ یہ المہد محل کا حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ باغیچہ برباد ہو گیا۔ 19ویں صدی عیسوی میں اس کو آہستہ آہستہ مرمت کر کے اصلی حالت پر واپس لانے کی کوشش کی گئی۔ یہ پاتیو دیلا مونٹیریا یعنی شکاریوں کا صحن کہلاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدرو بادشاہ شکار کا بے حد شوقین ہوا کرتا تھا۔ شکار پر جانے سے پہلے اسی صحن میں سارے شکاری جمع ہوا کرتے تھے۔ اس کے مغربی حصے میں کاسا دیلا کنسریسیاؤن یعنی معاہدے کا گھر واقع ہے۔ جب 1503 عیسوی میں اسپانیوں نے بر اعظم امریکہ پر قبضہ کر لیا تو تجارتی معاہدے اسی کمرے سے کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں پر کئی ہال اور کئی کمرے موجود ہیں جن کی اپنی اپنی تاریخی اہمیت رہی ہے۔ یہ محل موجودہ دور میں بھی شاہی تقریبات جیسے شادی کی رسومات وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ پلاسیو دے سان پیدرو ہے، جسے مدہار محل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بے حد خوبصورت محل ہے۔ پیدرو بادشاہ نے عیسائی حکمرانوں کی مدد کے بجائے قرطبہ کے امیر محمد پنجم سے معاہدہ کیا ہوا تھا اور سیویے پر حکومت کیا کرتا تھا۔ سن 1364 عیسوی میں اس نے اس محل کی توسیع کا سوچا اور پورے اندلس سے کاریگروں کو بلوایا، جن میں قرطبہ سے بھی کاریگر آئے۔ ان سب نے مل کر ان محلات کو ایسے تعمیر کیا کہ اپنی نظیر آپ ہیں۔ یہاں پر نہ صرف عیسائی بادشاہ کی تاریخ میں دیواروں پر نقوش کندہ ہیں، بلکہ قرآنی آیات بھی کندہ کی گئی تھی۔ ہال کے شمال میں الکوبا ریال یعنی شاہی رہائش گاہ ہے، جس کی دیواریں اور چھتیں بے حد خوبصورت پلاسٹر اور ٹائلز کے کام سے مزین ہیں۔ اس کا پچھلا کمرہ شاید بادشاہ کی گرمیوں کی رہائش گاہ ہوا کرتا تھا۔ ذرا سا آگے چلیں تو یہ پاتیو دے لاس مونیکاس یعنی گڑیوں کا حال ہے۔ یہ شاہی رہائش گاہ کا اندرونی حصہ ہے جس میں شہزادیاں اور ملکہ رہائش پذیر ہوا کرتی تھی۔ یہاں کی ڈیکوریشن بے حد خوبصورت ہے اور الحمرا محلات کی بالکل کاپی لگتی ہیں۔
इसके जुनूब में सालोम दे एम्बेहाराडोरेस यानी एम्बेसडर हॉल है। ये पेदरो अव्वल का शाही तख्त हुआ करता था। सन 1427 ईस्वी में इसकी छत की तामीर नौ की गई और सैकड़ों सितारों के पैटर्न पर बनाई गई लकड़ी की छत कायनात की अक्कासी करती है। इसके बाद इस कमरे का नाम सलोम डेला मेडिया नारान्हा यानी आधी नारंगी का हाल पड़ गया। इन हालों के अलावा यहाँ पर लातातार सहन और हाल भी हैं जिनकी अलग-अलग तारीखी अहमियत है। इन महलात के बैरूनी इलाके में ये शाही बागात हैं। रस्मी बागात में फूल और फव्वारे हैं और महलात के बिल्कुल करीब हैं, जबकि गैर रस्मी बागात आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। इनमें हर किस्म के फल और फूल लगे हुए हैं और महलात को घूम फिर कर आने के बाद सस्ताने के लिए एक अच्छी जगह फराहम करते हैं। अब आपको ले चलता हूँ अलमुहद जामे मस्जिद की तरफ। सन 1172 ईस्वी में खलीफा अबू याकूब यूसुफ ने शहर के जुनूबी कोने में एक मस्जिद की तामीर शुरू की, जिसकी तकमील सन 1198 ईस्वी में हो पाई। ये मस्जिद 15,000 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल थी। यहाँ पर उस जमाने में एक वसी वजू खाना भी हुआ करता था। यहाँ पर एक मीनार ईंटों और संगमरमर से बनवाया गया। ये 51 मीटर बुलंद था और रैंप से पैदल या घोड़े पर चढ़कर ऊपर मुअज्जिन अजान देने की खातिर जाता था। जब खलीफा मंसूर ने अल्फांसो हफ्तुम को शिकस्त दी तो इस खुशी में मीनार के ऊपर 4 कांसी के गुंबद बनवाए जिन पर सोने का पानी चढ़वा दिया। सन 1248 ईस्वी में ईसाइयों ने मुसलमानों को सेविये से बाहर निकाल दिया और तमाम मसाजिद की तरह इस मस्जिद को भी गिरजाघर में तब्दील कर दिया। साथ साथ इस मीनार को दुगना बुलंद भी कर दिया गया। बाद में इस मीनार के ऊपर एक हवा के रुख जानने के लिए 7 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा सिमटनुमा भी लगवा दिया। फिर यहाँ पर एक घंटा भी लगा दिया गया जिसको स्पेनिश जबान में जिराल्डा कहा जाता है। इसी मुनासिबत से इस पूरे गिरजाघर को जिराल्डा कहा जाने लगा और आज भी इसी नाम से जाना जाता है। सन 1356 ईस्वी के ज़लज़ले ने इस मीनार को बेहद नुकसान पहुंचा था और ये सिमटनुमा भी जमीन बोस हो गया। बहरहाल वक्तन फवक्तन इस गिरजाघर की मरम्मत की जाती रही, लेकिन वो खूबसूरती बहाल न कर सके। मैं भी इस मीनार के ऊपर हाँफते कांपते आखिरकार पहुंच ही गया और ऊपर से पूरे शहर का नजारा बेहद खूबसूरत लगा। ऊपर चढ़ने पर जो मेहनत की वो वसूल हो गई। इस मस्जिद के दाखिली दरवाजे के पास ये जगह कभी मस्जिद का सहन हुआ करती थी। आजकल इसको पातियो दे लोस यानी नारंगियों के दरख्तों का सहन कहा जाता है। इस सहन में बैठकर पछताने का मौका भी मिल जाता है और उस वक्त की याद भी की जा सकती है जबकि मुसलमान जोक तर जोक इस जामे मस्जिद में आने के बाद इस सहन में आपस में मुलाकात और गुफ्तगू किया करते होंगे। अब चलते हैं इस मस्जिद के अंदर। यह मस्जिद उस जमाने में कुर्तुबा की जामे मस्जिद का मुकाबला कर सकती थी। यह मस्जिद चौकोर थी और इस तरह से बनाई गई थी कि किबला 100% सही हो। इसकी दीवारें रियाजी एतबार से अपनी मिसाल आप थी। इसकी मेहराब के ऊपर एक बेहद खूबसूरत गुंबद भी बनवाया गया था। मिंबर बेहद महंगी लकड़ी से बनाया गया था जिस पर संदल, काले पत्थर, सोने, चांदी और हाथी दांत से कढ़ाई की गई थी। इस मस्जिद के दाखिली दरवाजे भी बेहद खूबसूरत कढ़ाई से बनवाए गए थे। इस मस्जिद को गिरजाघर में तब्दील करने के बाद दाखिली दरवाजे बंद कर दिए गए और यहाँ पर कई खानदानों ने अपने अपने चैपल बना लिए। इन चैपल्स की कुल तादाद 80 है। इनमें से बाज़ तो बेहद खूबसूरत है। आजकल इस गिरजाघर के 15 दरवाजे हैं और जिराल्डा दुनिया के वसीअ तरीन गिरजाघरों में से एक है। इसके एक कोने में क्रिस्टोफर कोलंबस का मकबरा है। कोलंबस का इंतकाल बर्र-ए-आज़म अमरीका दरियाफ्त करने के बाद सन 1506 ईस्वी में स्पेन के एक शहर वयादोलिद में हो गया और उसको वहीं दफना दिया गया, लेकिन उसके भाई डियोगो ने बाकियात को इस गिरजाघर में मुंतकिल करवा दिया।
लेकिन 36 साल के बाद एक बार फिर कोलंबस की बाकियात को बर्र-ए-आज़म अमेरिका के एक जजीरे डोमिनिकन रिपब्लिक के शहर सैंटो डोमिंगो में मुंतकिल करवा दिया गया। फिर तकरीबन 300 साल के बाद उसकी बाकियात को क्यूबा के शहर हवाना मुंतकिल करवा दिया गया। उसके 100 साल के बाद एक बार फिर उसकी बाकियात को इसी गिरजाघर में यहीं पर मुंतकिल करवा दिया गया और आज तक यहीं पर है। कहा जाए तो ये बेचारा मुसाफिर सारी जिंदगी सफर करता रहा, लेकिन मरने के बाद भी उसकी बाकियात लंबे लंबे सफर करती रही। सन 1877 ईस्वी में सैंटो डोमिंगो में एक ताबूत मिला जिस पर दर्ज था, समंदर का एडमिरल। आज तक ये फैसला ना हो सका है कि कोलंबस कहाँ दफन है, सैंटो डोमिंगो में या सेविये में। आखिर में मैं आपको सेविये शहर की कुछ मशहूर जगह दिखाना चाहता हूँ। ये शहर पार्कों, फव्वारों और नारंगियों के दरख्तों से भरा हुआ है। ये तोरो देल ओरो यानी सोने का मीनार है। ये खलीफा अल-मुहद ने हिफाजती एतबार से बनवाया था। ये गुआदालक्विविर दरिया के किनारे वाक़ है। ये दरिया जाकर समंदर से मिलता है। इसी जगह से कोलंबस ने अपना सफर शुरू किया था और इसी शहर में अमेरिका की लूटी हुई दौलत से भरे भरे जहाज आया करते थे। तिजारत की वजह से उस जमाने में ये शहर बेहद अमीर हुआ करता था। ये प्लाजा दे स्पानिया है, जिसके माने हैं स्पेन स्क्वायर। ये सन 1929 ईस्वी में तामीर किया गया था। यहाँ पर न जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें लॉरेंस ऑफ अरेबिया, स्टार वार्स, अटैक्स ऑफ द क्लोन और द डिक्टेटर नुमायां हैं। जदीद इमारात में से मेट्रोपोल पैरासोल बेहद नुमायां है। इसको मकामी लोग लास सेतास यानी मशरूम या खुम्बी कहते हैं। इस इमारत की तकमील सन 2011 ईस्वी में हुई है और ये लकड़ी से बनी हुई है। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो खत्म कर रहा था, लेकिन फिर सोचा कि यहाँ के महल्लात जिनकी वीडियो आप देख चुके हैं, उनके मेरे पास काफी क्लिप्स मौजूद हैं। अगर ये आपको ना दिखाया तो आप ये अंदाजा बखूबी नहीं लगा सकेंगे कि बादशाहों के अखबार में ये महल्लात कितने खूबसूरत हुआ करते होंगे। बहरहाल आप इन महल्लात की बाकियात म्यूजिक के साथ देखें। स्पेन की अगली और आखिरी टेस्ट मैड्रिड के साथ जल्द अज जल्द हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मेरी जानिब से खुदा हाफिज।